ایوان صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے خط۔ اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات کرانا ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 48A(5) اور 224(2) کے تحت صدر مملکت عام انتخابات کرانے کی تاریخ مقرر کریں گے۔ سپریم کورٹ میں سیاسی صورتحال پر نوٹس کی سماعت جاری ہے۔ عدالت نے 31 مارچ کی قومی اسمبلی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں کے وکلا کے دلائل مکمل، بابر اعوان عدالت میں دلائل دے رہے ہیں۔ نگران حکومت کا قیام اس کیس سے روکا ہوا ہے۔ کوشش ہے آج فیصلہ سنا دیں۔ عدالت ریاستی اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، فوکس صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا تمام معاملہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے۔ شہباز شریف اس لیے اجلاس میں نہیں آئے کیونکہ انہیں مندرجات کا علم تھا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ 3 دن اپوزیشن نے لگائے ہیں، ہم کم وقت لگائیں گے۔ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ابھی آرٹیکل 63(1) کی تشریح کے حوالے سے فیصلہ آنا باقی ہے۔ بابر اعوان۔ آئین کسی بھی ریاست میں سب سے مقدم ہوتا ہے۔ ملک کی خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ آئین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہر شہری کا فرض ہے۔ حکومت بتائے بیرونی سازش ناکام بنانے کے لیے کیا اقدام کیا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال۔ بیرونی سازش کا حصہ بننے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ دے گی۔ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں خطاب۔ ادارے کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے استحکام اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج اور لانگ مارچ کو عوام میں ہمیشہ پذیرائی ملی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیری نوجوانوں کو آریگم ترال علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا اجلاس۔ بھارتی اقلیتی تنظیموں کا کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ فاشسٹ مودی نے بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ بھارتی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ منظم طور پر ریاستی تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور میں شعبہ صحت کے 3 نئے منصوبوں کا آغاز کر دیا۔ سروسز ہسپتال کے نئے ایمرجنسی ٹاور، ٹراما سینٹر، ایمرجنسی بلاک اور حضرت حمیدالدین حاکم سرجیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یورپی ملکوں کی روس کے خلاف معاشی اور سفارتی پابندیاں۔ فرانس اور جرمنی کے بعد اسپین کا بھی 25 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ روس کو امریکی بینکوں میں موجود فنڈ سے قرض ادا کرنے سے بھی روک دیا گیا۔
हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बावजूद गोश्त की दुकान बंद न करने पर खातून पर वहशियाना तशद्दुद। भारत की रियासत राजस्थान के इलाके प्रतापगढ़ में आरएसएस के गुंडों ने एक खातून को बीच सड़क मारा पीटा, खातून का स्टॉल भी उलट दिया। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 162 रन बनाए। बाबर आजम के 66 रन, नेथन एलिस की 4 विकेटें। मेहमान टीम ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान एरन फिंच ने 55 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। T20 मैच में जिस तरह का टोटल जा रहे थे वैसा नहीं मिल सका। फील्डिंग को बेहतर करना है, मैच में मिलने वाले मौकों से फायदा उठाना चाहते हैं। आइंदा सीजन में मजीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। वेस्ट इंडीज के क्रेग ब्रैथवेट और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी प्लेयर ऑफ द मंथ नामजदगी में शामिल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत अरसाल कर दिया गया है और इस खत में इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया है। आइन के आर्टिकल 48 और आर्टिकल 224 के तहत सदर ममलकत आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। ये आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी सूरत हाल से मुतालिक नोटिस की समाअत जारी है। अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी सूरत हाल पर नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है, जबकि 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली का कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है और दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाबर आवान अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सियासी सूरत हाल पर नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है, जबकि ये समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की समाअत जारी है। अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सियासी सूरत हाल पर नोटिस की समाअत जारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आपको बताते चलें कि अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अज खुद नोटिस की समाअत जारी है। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर आवान का कहना है कि अभी आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर आवान ने कहा कि 3 दिन अपोजिशन ने लगाए हैं, हम कम वक्त लगाएंगे लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद उमर और चौधरी फवाद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास का फैसला किया गया ताकि तमाम पार्लियामान के सामने रखा जाएगा। शहबाज शरीफ इसलिए इजलास में नहीं आए क्योंकि उन्हें मंदरजात का इल्म था। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ किया गया था। PTI रहनुमाओं ने कहा कि बकौल मरीम नवाज सफ़ीर को रातों रात तब्दील किया गया, जबकि सफ़ीर के तबादले का 4 माह कबल ऐलान हो चुका था। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि अपोजिशन के दौर में 400 ड्रोन हमलों में हुए और किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की।
इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान के आवाम के साथ है। दुनिया खुददार अक़वाम की इज्जत करती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ारजा पॉलिसी बेहतरीन है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आज पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। ये केस पाकिस्तान की खुददारी का केस है। फैसल जावेद ने कहा कि ये केस पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का केस है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि आइन किसी भी रियासत में सबसे मुकद्दम होता है। आइन की हिफाजत के लिए खड़ा होना हर शहरी का फर्ज है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की खारजा पॉलिसी को दांव पर लगा दिया गया। हुकूमत बताए बैरूनी साजिश नाकाम बनाने के लिए क्या इकदाम किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि खुद मुख्तारी का मतलब है माशी तौर पर मजबूत होना। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इक्तसादी शराकतदार है। पंजाब असम्बली का इजलास कब होगा, कन्फ्यूजन बरकरार है और आज तलब किए जाने वाले इजलास का पंजाब असम्बली ने ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। आपको बताते चले हैं कि पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से अब तक कन्फ्यूजन बरकरार है। आज तलब किए जाने वाले इजलास का पंजाब असम्बली ने ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पंजाब असम्बली के हवाले से कि वो इजलास कब होगा, अब तक कन्फ्यूजन बरकरार है। आज तलब किए जाने वाले इजलास का पंजाब असम्बली ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास होना था, जबकि अभी तक ये इजलास नहीं हो सका है। पंजाब असम्बली का इजलास कब होगा, इस हवाले से कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। आज तलब किए जाने वाले इजलास का पंजाब असम्बली ने ताहाल कोई नोटिफिकेशन फिल वक्त तक जारी नहीं किया है। लाहौर से हमारी नुमाइंदा हुमा सदफ इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हुमा, हमें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। पहले उसको 6 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन कल पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसको मौखर करके 16 अप्रैल को तलब किया गया है। रात गए डिप्टी स्पीकर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया, एक ऑर्डर जारी किया गया जिसके ऊपर उनके दस्तखत मौजूद थे। आज भी उन्होंने मीडिया पर आकर उसकी तस्दीक भी की है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें उन्होंने कहा कि आज शाम मतलब 6 अप्रैल की शाम 7:30 बजे इजलास होगा, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब भी मुतवक्को था। लेकिन पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है वो उसका ये कहना है, उसका ये मौक़िफ़ है कि उसकी जानिब से ये जारी नहीं किया गया और आईनी तौर पर इजलास तभी मुमकिन है जब पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से तलब करने का नोटिस जारी किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो अब जो है वो गुमा गू की सिचुएशन है। जो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसका ये मौक़िफ़ है कि उनके मुताबिक 16 अप्रैल को ही इजलास होगा, जिसके अंदर कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। जबकि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि ये आज उन्होंने तलब किया है और आज वो सदारत करेंगे जिसके शाम 7:30 बजे जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। तो ये एक आईनी मसला खड़ा हो गया है जिसके नतीजे में कोई सूरत हाल मजीद खराब भी हो सकती है, क्योंकि जब आखिरी इजलास हुआ पंजाब असेंबली का तो उसमें भी आपस में हंगामा आराई और तसादुम वगैरह हुए, जिसकी वजह से उसको जो है वो मुलतवी करना पड़ा था। और अभी तक कुछ वाजे नहीं है। अपोजिशन का ये कहना है कि वो शाम को ज़रूर जाएंगे इजलास में और इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा इजलास जिसका अगर हम नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। तो वहाँ पर क्योंकि सूरत हाल पहले ही इस तरह की थी तो वहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और सिक्योरिटी मौजूद है। तो अब देखना यह है कि शाम को ये इजलास हो पाता है या नहीं हो पाता, और अगर होता है तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी और अपोजिशन और हुकूमती अरकान की दोबारा वहाँ पर कोई तसादुम और हंगामा आराई भी हो सकती है। तो अभी तक हम इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ये हम कह सकते हैं कि ये दो ऑफिस के दरमियान एक तरह का तनाज़ा है जिसका ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा सदफ आपका। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी सूरत हाल पर खुद नोटिस की समाअत जारी है। अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब से। इमरान मनसब, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, दरख्वास्त गुजारों के जैसा कि आपने कहा कि दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, तो आज कुछ दरख्वास्त गुजारों के दलाइल होना बाकी हैं, जिसमें बाबर अवान के दलाइल इस वक्त जारी हैं। और जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ जो है रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली ने आज शाम को इजलास बुलाया था। लाहौर में हालात बड़े कशीदा हैं और असम्बली का अमला जो है वो डिप्टी स्पीकर का हुक्म नहीं मान रहा।
लगता है कि आज भी वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आज हम बहुत अहम केस सुन रहे हैं और कोशिश है कि मुकदमे को निपटाया जाए, और अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो फैसला नहीं कर रही, और उनका ये भी कहना था कि यकतरफा फैसला कैसे दे सकते हैं इस वक्त तमाम तरीक़ाइन को सुने बगैर। इसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील बाबर इरफान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस वक्त सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये इसको तरीक नहीं है, और ये आज को नोटिस केस की हमेशा अदालत के अंदर और बाहर हमने हिमायत की है, और हम अदालत की मशहूर हैं कि कौम पर मेहरबानी करते हुए जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसने इसका नोटिस लिया है। बाबर इरफान का कहना था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मबनीयती पर मबनी और गैर आईनी करार दी जा रही है। ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 5 के जरिए किसी को गद्दार कहा गया है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से आर्टिकल 95 और 69 की तशरीह की इस्तदा की है, लेकिन आर्टिकल 63A पर किसी ने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा। बाबर इरफान का ये भी कहना अपोजिशन का दावा है कि पार्लिमानी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और नून लीग के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया है। पटिशनर का ये कहना है कि अदालत उनके हक में शॉर्ट ऑर्डर भी जारी करे। अभी बाबर इरफान के दलाइल जारी हैं, और जो है समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान आपका। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सियासी सूरत हाल पर खुद नोटिस की समाअत जारी है। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि इस वक्त बाबर अवान अदालत में अपने दलाइल दे रहे हैं। फिल वक्त आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बैरूनी साजिश का हिस्सा बनने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में नजरियाती कारकुनों को टिकट देगी। तफसील जानिए मोहम्मद मजहर अब्बास से उनकी इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में हुकूमत गिराने वाले साजिशों को सबक सिखाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहाँ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे, और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी। सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कबर बनेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी होटल में जमीर खरीदे जा रहे हैं। साजिशी टोला जमहूरियत के नाम पर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने के दर पे है, उन्हें सजाएं देना होंगी। कौम इस साजिश के खिलाफ खड़ी हो। ये जो तमाशा हो रहा है आप सबके सामने, ये जो लोग अपने जमीर का सौदा करते हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मुल्क के भी गद्दार हैं, ये जमहूरियत के भी गद्दार हैं, और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। इस साजिश को शिकस्त देना आपका फर्ज है, और हर जगह अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कह रहा हूं हमारी तंजीमों को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि अपोजिशन पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद ने कहा कि पीटीआई के कारकुन अपने कायद वजीर आजम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तहरीक इंसाफ के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जबकि पार्टी चेयरमैन इमरान खान की सदारत में होने वाले इस इजलास में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के तयन और टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। इमरान खान ने सूबाई सदूर को दरखास्तों की वसूली का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तेजी से बढ़ रहा है। कारकुनान इंतखाबात की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और भरपूर तरीके से दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इदारे काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद की है। हमारे एहतजाज और लॉन्ग मार्च को अवाम में हमेशा पजीराई मिली। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और आइन के लिए वक्फ की। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद कर रही है। अगर हम जमहूरी अंदाज से चलेंगे तो पाकिस्तानी मईशत को भी संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम के लिए इलेक्शन लड़ेगी और पंजाब में भी कामयाब होगी।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर और वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने कहा है कि आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क को मजबूत बनाया जा सकता है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ के झूठे इल्जामात लगाकर इजलास मौखर किया जा रहा है। इस मुल्क में आइन और कानून का राज होगा तो हम सब यहाँ पर इज्जत के साथ रह सकेंगे। तो गुजारिश ये है कि अभी आपके सामने, आपको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जो लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन के बारे में हेयरिंग चल रही थी और वहाँ पर आजम तारड़ साहब ने कहा कि ये इलेक्शन को नहीं कराना चाहते और किसी और ने नहीं, एडवोकेट जनरल पंजाब का उसने कहा जी हम आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। फिर उसी असना में जब ये स्टेटमेंट दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तमाम चैनल्स पर टिकर चले कि अब इजलास जो है वो 6 के बजाय 16 को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 44,330 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 44,330 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है, जबकि 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है और 100 इंडेक्स 44,330 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है गुज़श्ता रोज से, ताहम इंस्टेबिलिटी अभी बरकरार है, फ्लक्चुएशन हो रही है, लेकिन तेजी का रुझान ओवरऑल देखा जा सकता है। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 44,330 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज से तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 44,330 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़मीर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी तेज़ी देखने में आई है और 100 इंडेक्स जो है तकरीबन 410 पॉइंट्स तक पहुंचा और उसके बाद अब थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन देखने में आया है। हमने माहिरीन से पूछा कि ये तेज़ी की क्या वजूहात है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होती जाएगी, सर्टेनिटी आती जाएगी, ये जो सियासी इस्तेहकाम जैसे आएगा और केस भी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसका जैसे फैसला करीब आता जाएगा तो इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब जो मामला हैं काफ़ी बेहतरी की तरफ नज़र आते जा रहे हैं और यही उम्मीद है कि ये अगर ट्रेंड बरकरार रहा और फैसला भी ऐसा है जो मुल्क के हवाले से बेहतर होगा तो इसमें मज़ीद तेज़ी भी देखने में आएगी। इसके अलावा जैसे कल IMF ने, हमने आपको बताया कि IMF की वजह से भी एक बूम देखा जा रहा है कि IMF ने ये कह दिया है कि जी जो कर्ज की जो अदायगी थी ये सस्पेंड नहीं होगी, बल्कि जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ रीनिगोशिएट करके उनको ये कर्ज दिया जाएगा। तो एक माशी इस्तेहकाम की भी खबर थी, इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी बेहतर और मुस्बत असर हुआ है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा है। बिल गेट्स ने लिखा कि उनके लिए हिलाल पाकिस्तान हासिल करना एहसास की बात है। पाकिस्तान में हर बच्चे की सेहत और बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके आज़्म को सराहते हैं। पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए पोलियो से पाक मुस्तकबिल यकीनी बनाने का काम काबिल तारीफ है। खत में कहा गया कि पाकिस्तान ने पोलियो वायरस के खिलाफ जंग में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। 1 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान की मुसलसल काविश मुल्क की तरक्की को तेज़ करने में मुआविन साबित होगी। उन्होंने कहा कि दौरा पाकिस्तान के दौरान ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी, ग़िज़ाइयत की कमी और एहसास प्रोग्राम को मुअस्सर बनाने जैसे मौज़ूआत पर बात करके खुशी हुई। खत में मज़ीद कहा गया कि मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ शिराकत का मुंतज़िर हूँ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेपाल के सफ़ीर तापिस अधिकारी ने रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात भी ज़ेर ग़ौर आए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नेपाल के साथ मुख्तलिफ शोबों में तवीलुल मुद्दत ताल्लुकात को वसअत देने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि खित्ते के तमाम मुल्कों को पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। नेपाली सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
हर सतह पर ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने यूएन मिशन कॉन्गो में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान की कब्र पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। चीफ जस्टिस ने शहीद के वालिद से भी मुलाकात की और उनसे इजहार ताज़ियत किया। चीफ जस्टिस ने पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज ने दिफाए वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इसके बाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मकबूजा इलाके में शहीद किए जाने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई है। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने कश्मीरी नौजवान को पुलवामा के इलाके आरेगाम तराल में तलाशी और महासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज एक कार्रवाई के दौरान जिला राजौरी के इलाके नौशहरा में एक नौजवान को शहीद जबकि जिला बारामूला के इलाके रफियाबाद में एक नौजवान को गिरफ्तार किया था। भारत अक़लियतों के लिए एक गैर महफूज मुल्क बन गया है। माह मुक़द्दस में भी भारतीय रियासत राजस्थान और कर्नाटक में मुसलमानों की इमलाक चलाई जा रही हैं और मजहबी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। भारत एक ऐसा मुल्क है कि जहां अक़लियतों को ना तो बुनियादी हकूक मुयस्सर हैं, ना ही इबादत की आज़ादाना बजावरी की जा सकती है, और मुसलमानों के लिए तो ये किसी दोज़ख से कम नहीं। यहाँ मुसलमानों की अमलाक, इज्जत और जान कुछ भी महफूज नहीं। RSS के गुंडे जब चाहे मुसलमान बस्तियों पर चढ़ दौड़ें और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दें। माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में भी भारतीय रियासत राजस्थान में दौरान कर्फ्यू मुसलमानों के तकरीबन 50 घरों को आग लगा दी गई। मुसलमानों के घरों पर पथराव किया गया और इनकी दुकानें और गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई। दूसरी जाने भारतीय रियासत महाराष्ट्र में हिंदू इंतहा पसंदों ने आजान से पहले लाउड स्पीकर पर हिंदू मजहब के गीत पढ़े। रियासत कर्नाटक में भी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों बजरंग दल और श्री राम सेना ने मसाजिद के लाउड स्पीकरों पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। कर्नाटक हुकूमत ने तलबात के बाद अब टीचर्स के लिए भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी है और बाहिजाब खवातीन को इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने से रोक दिया गया है। रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी हैं। रियासती वजीर तालीम BC नगेश ने कहा कि सरकारी अहकामात के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा के लिए यूनिफॉर्म लाजमी है। इसका इतलाक टीचर्स पर भी होता है। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी कोयटा का दौरा किया। इस मौके पर असातिज़ा कराम के साथ गुफ्तगू में उन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की में खवातीन के कलीदी किरदार को सराहा और कहा कि बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में सूबे की खवातीन का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बलूचिस्तान में खवातीन जिंदगी के तमाम तर शोबों में आगे आ रही हैं और अपनी सलाहियतों को मनवा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने यूनिवर्सिटी की काविशों और खिदमत की तारीफ की और इसके असातिज़ा को जामे का अहम तरीन सुतून करार दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम की मरम्मत और तज़ीन के लिए अपनी मुआवनत का भी ऐलान किया। पाकिस्तान ने राजस्थान के इलाके कारूली में मुसलमानों के घरों को मिसमार करने की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खाजा के तर्जुमान के मुताबिक BJP RSS नजरिए से ताल्लुक रखने वाले हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से राजस्थान में मुसलमान बरादरी के 40 से जायद घरों को नजर आतिश किया गया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय रियासती इदारों की जानिब से शहरियों की हिफाजत में नाकामी तशवीश का बायस है। भारत में अक़लियतें और खुसूसी तौर पर मुसलमान खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बरादरी भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का फौरी नोटिस ले। नाज़रीन, जनीवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के 49वें इजलास के मौके पर भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसिल के हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि फाशिस्ट मोदी ने इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में बसने वाली अक़लियतों को निशाना बना रखा है। मोदी हुकूमत ने अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियां बना रखी हैं और हिंदुस्तान भर में तमाम अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। मुजाहिरीन ने कहा कि भारतीय मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के अलावा आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाली रियासतों आसाम, नागालैंड पर मुनज़्ज़म तौर पर रियासती तशद्दुद में इजाफा हुआ है। भारतीय हुकूमत की जानिब से हिंदू इंतहा पसंदों को मजीद हौसला अफजाई की जा रही है और नरेंद्र मोदी का हिंदू इंतहा पसंदी का एजेंडा तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारत की रियासत राजस्थान के इलाके प्रतापगढ़ में आरएसएस के गुंडों ने एक खातून को बीच सड़क में मारा पीटा। इस खातून का जुर्म ये था कि इसने हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बावजूद गोश्त की दुकान बंद नहीं की थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि इंतहा पसंदों ने खातून का स्टॉल भी उलट दिया, जबकि खातून के हमरा मौजूद एक लड़की को भी जोदोकोप का निशाना बनाया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार हैं, जबकि ख्याल रहे कि अमेरिका इन पाबंदियों के जरिए रूस के मरकजी बैंक और रूसी सदर पुतिन के अहल खाना को निशाना बनाएगा। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो $10 करोड़ मालियत के टैंक शिकन मिसाइल यूक्रेन को फराहम करेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तकरीर करते हुए रूसी फौज के मज़ालिम की तफसील पेश की। उन्होंने कहा कि रूसी फौज ने यूक्रेन के शहरियों को सड़कों पर कत्ल किया और उन्हें टैंकों के नीचे कुचला। रूस ने कहा है कि उसकी फौज पर लगाए गए इल्जामात जालसाजी हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस से कोयले की दरामद बंद कर दी है। खबर देंगे आपको हरमैन शरफैन से, जहां की इंतजामिया उम्रा करने वालों को इफ्तार से सहरी तक जमजम की सहूलत फराहम कर रही है। जमजम वाफर मिकदार में मौजूद है। मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने बयान में कहा कि उम्रा करने वालों को यौमिया 14,000 आब जमजम के कूलर और 1,60,000 आब जमजम की बोतलें फराहम की जा रही हैं। मोतमरीन के लिए मस्जिद नबवी के सहनों में आब जमजम की 1200 सबीलें भी लगाई गई हैं। नाज़रीन, बरतानिया के कौमी शुमारियात दफ्तर के मुताबिक बरतानिया में 49 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जबकि कोरोना से मुतासिर की यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में ज़्यादा है। कौमी शुमारियात दफ्तर का कहना है कि यह तादाद अप्रैल 2020 के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। कोरोना में इजाफे की बड़ी वजह लोगों के आपस में मिलना जुलना है। कौमी शुमारियात दफ्तर ने सर्वे के लिए पूरे बरतानिया में हज़ारों टेस्ट किए, जिसके बाद सीनियर माहिर शुमारियात ने बताया कि कोरोना से इन्फेक्शन की शरह अब भी बहुत ज़्यादा है। सर्वे से पता चला है कि इंग्लैंड और वेल्स में खासतौर पर मुअम्मर अफराद सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। खलीजी अरब रियासत कुवैत की हुकूमत अपने खिलाफ पेश करदा अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग से पहले ही मुस्तफ़ी हो गई है। पार्लिमानी राय शुमारी से सिर्फ एक रोज़ कबल हुकूमती अरकान ने पार्लिमान में अपने इस्तीफे जमा करा दिए। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पार्लिमानी अदम एतमाद की तहरीक पर राय दही आज होना थी, मगर काबीना के अरकान ने वोटिंग से 24 घंटे कबल गुज़श्ता रोज़ अपने इस्तीफे जमा करा दिए। शुमाल मगरबी नाइजीरिया में गुज़श्ता हफ्ते मुसल्लह अफराद की जानिब से एक ट्रेन पर धमाका खेज मवाद से हमला करने के बाद 150 से ज़ायद मुसाफिर अब भी लापता हैं। 28 मार्च को होने वाले इस हमले में 8 अफराद मारे गए थे और कई अफराद को अगवा भी कर लिया गया था। कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया है कि उन्हें मुश्तबा अफराद की जानिब से राबता करके बताया गया है कि उनके करीबी रिश्तेदारों को अगवा किया गया है। ईरान के शहर मशहद में हजरत इमाम रजा के मज़ार में मुसल्लह शख्स ने हमला कर दिया। हमले में 2 आलम दीन जाँ बहक हो गए, जिनमें एक का नाम मोहम्मद इस्लानी बताया गया है। हमले में एक आलम दीन जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। हुकाम ने बताया कि हमलावर शख्स और इसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशहद के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हमलावर गैर मुल्की है। रुख करेंगे श्रीलंका का, जहां बहरान मजीद बढ़ गया है, जबकि हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और इराक में अपने सिफारतखानों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। कोलंबो में वज़ीर-ए-आज़म राजापक्से की क़यामगाह के बाहर बारिश के बावजूद एहतजाज जारी रहा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यह एहतजाज चंद रोज कबल शुरू हुआ था, जिसका सबब मुल्क भर में जारी मौशी बहरान है। मुल्क की सतह पर तकरीबन 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और ईंधन की कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ रही हैं। अलकायदा की जानिब से एक नई वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें तंजीम के सरबराह एमन अल-जवाहिरी के जिंदा होने के सबूत दिया गया है। अलकायदा सरबराह एमन अल-जवाहिरी के बारे में 2020 के अवाखिर में ये इतलात थी कि उनका इंतकाल हो चुका है या वो फिर बीमार हो चुके हैं। ये नई वीडियो अलकायदा की जानिब से 5 अप्रैल को जारी की गई है, जिसमें एमन अल-जवाहिरी ने इंडिया की मुसलमान खातून मुस्कान खान को खिराज तहसीन पेश किया है, जिनको हिजाब के तनाज़े के बाद दुनिया भर में शोहरत मिली। अलकायदा की जानिब से इस वीडियो को अंग्रेजी में इंडिया की अजीम खातून का उन्वान दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 26,413 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 148 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.56% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। इस वक्त मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों में से 310 की हालत तशवीशनाक है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में शोबा सेहत के 3 नए मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज अस्पताल के नए इमरजेंसी टावर और ट्रामा सेंटर का संग बुनियाद रखा। नए इमरजेंसी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर बनने से 800 बिस्तरों का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ये मंसूबे लाहौर की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखकर तरतीब दिए गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तीनों मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत है। वज़ीर आला ने हज़रत हमीदुद्दीन हाकिम सर्जिकल कॉम्प्लेक्स, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, हस्पताल का भी संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला ने सियासी और इंतज़ामी टीम को शोबा सेहत की बेहतरी के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नए मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने महंगाई के खात्मे और आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबे भर में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए हैं। ननकाना साहिब की तहसील शाहकोट में लगाए गए बाजार में रोजमर्रा खाने पीने की चीजें आम मार्केट से कम निर्खों पर दस्तयाब हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर इकबाल। पंजाब हुकूमत ने महंगाई में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ज़िला ननकाना साहिब की तीनों तहसीलों में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए हैं। सस्ते रमज़ान बाज़ार में आटा, सब्जियां, फ्रूट और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। आला मेयार की मसनूआत की आम मार्केट के रेट से कम पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर बाज़ार में शिकायत सेल कायम किया गया है। यहाँ पे माशाल्लाह बेहतरीन निज़ाम है और कोई शिकायत या फल का कोई मसला या कोई रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है, हम उसको फौरी फ़ाइन कर रहे हैं। इधर रमज़ान बाज़ार में बहुत अच्छा इंतज़ाम है, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं। सब्सिडी बहुत अच्छी उन्होंने दी है इस दफ़ा और काफ़ी अवाम जो सी इधर से खुश और मुतमिन जा रहे, रायत बहुत दिया उन दफ़ा इस दफ़ा से। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं और जो बैठे हुए हैं हुकूमती मुलाज़म वो अवाम के साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से आम आदमी को सस्ते दामों अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की तरफ से की गई महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सस्ते रमज़ान बाजार में जहां पर महंगाई का खात्मा हुआ है, वहीं पर मियारी अशिया एक ही छत तले दस्तयाब भी हैं। मलिक ताहिर इकबाल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, शाहकोट। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पाकपतन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए ज़रूरिया सस्ते दामों फराहम की जा रही है। तफसीलात अब्बास अली आरफी की इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में आम आदमी को रिलीफ फ्राहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालें, चावल, घी और कुकिंग ऑयल समेत दूसरी 19 जरूरी अशिया रियायती कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अच्छा निज़ाम है और रिलीफ मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर पर। अब बाजारों सस्तियां मिल रही हैं ये चीज़ें इत्थे जी राइट चीज़ें मिल रही हैं। हुकूमत का बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 950 रुपए, चीनी 85 रुपए, घी 260 रुपए और खजूर 170 रुपए में फरोख्त की जा रही हैं। इसी तरह कुकिंग ऑयल, खजूरें और बेसन समेत दीगर जरूरी अशिया भी मार्केट रेट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमती इक़दामात को सराहा जा रहा है। ये तो सौदा लेने आया बेटे, अच्छा मिलता पाया तो रायत मिलता पाया। घी 260 रुपए किलो जो कि मार्केट में 450 रुपए किलो दस्तयाब है वो, और दूसरी रोजमर्रा की अशिया वो भी बिल्कुल माकूल रेट पर मिल रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने और घरेलू इस्तेमाल की अशिया वाफर मिकदार में मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला रमजान रिलीफ पैकेज ईद तक जारी रहेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फ्राहमी से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिल रहा है बल्कि इससे नाजायज़ मुनाफाखोरों की भी हौसला शिकनी हो रही है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। जब 3.5 साल बाद अवाम इनसे सवाल पूछती है कि कहाँ है 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और क्यों हमारा आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुआ, तो आगे से गालियां देते हैं, आगे से अमर बिल मारूफ के नारे लगाते हैं। और जब वो भी पाकिस्तान की आवाम को इनके अमाल का पता चला तो बैरूने मुल्क साजिश के कागज़ लहराए गए। यही कागज़ ऑपोजिशन के खिलाफ कमीशन खाने और करप्शन करने के ऊपर लहराए गए। और आज कहाँ हैं वो लोग? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया ऑपोजिशन को जेलों में डालने के लिए। और उसके बरक्स मतीउल्लाह जान साहब, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फरा गुज्जर बाहर क्यों गई? ये आपको कैसे तरीके से जो आइन है वो एज अ होल पढ़ा जाएगा या सिर्फ उसके चंद आर्टिकल्स की आपने तशरीह करनी है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि नहीं, आइन को हमेशा एक पूरा एज अ होल इंटरप्रेट किया जाता है। अब इस नुक्ते में क्या उनकी बात है, क्यों ये किया जाता है? क्योंकि जो
आर्टिकल 63A है, वो भी आइन का हिस्सा है। अगर आप आर्टिकल जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव का आर्टिकल है, अगर आप उसको सामने रखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63A की वायलेशन हुई या नहीं हुई। क्या लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया गया, उनकी ख़रीदो फरोख्त की गई, उनको सिंध हाउस में उठा के रखा गया? एक नुक्ता तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि क्या आप आइन के कुछ आर्टिकल्स को उसके ऊपर जो है वो आंखें बंद कर लेंगे और दूसरे आइन के आर्टिकल जो हैं उनके ऊपर आप खोल लेंगे आंखें? तो ये एक नुक्ता है जिसका उन्होंने फैसला करना है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो मटेरियल क्या था जिसके ऊपर डिप्टी स्पीकर इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये नहीं बनती, वो मटेरियल डॉक्टर बाबर अवान ने पेश नहीं करना। अगरचे उन्होंने कहा कि अगर आप इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो आप इन कैमरा इसको कर लें, लेकिन इसका जो बुनियादी मटेरियल जो आएगा वो या अटॉर्नी जनरल साहब पेश करेंगे और या फिर वज़ीर आज़म साहब के वकील जब ये अपना आर्गूमेंट शुरू करेंगे तो वो तब अदालत के सामने रखेंगे, और वो भी तब रखेंगे जब अदालत ने उनको इजाज़त दी। गो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग चल रही हैं या जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, हमें असल मामला जो पाकिस्तान का है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी जल्द अज जल्द आनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। आज डॉलर आप देखें कि सारे मामले के में जो है वो 186 रुपये पर पहुंच गया है, क्योंकि कोई इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है और एक इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल रही है। जितना अदालत के अंदर एक तो ये मामला तवील होगा और दूसरा फिर अगर अदालत के फैसले के नतीजा जो भी निकलेगा, अगर मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी मईशत जो हमने बड़ी मुश्किल से संभाली थी, हमने तेल की कीमतें कम की, हमने बिजली की कीमतें कम की, उसके बाद जो जॉब्स क्रिएट की, वो सारा जो हमने गेंस लिए थे वो तेज़ी से हाथ से निकल रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ जाने का वाहिद तरीका जो है वो इलेक्शंस है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पिटीशन क्या है, सबसे पहले नून लीग का या अपोजिशन का मुतालबा क्या था? वो कह रहे थे जी इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में हुकूमत जानी चाहिए। हुकूमत चली गई है, इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप अब ये और असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, अब पिटीशन क्या है कि नहीं ये असम्बली सही डिज़ोल्व नहीं हुई, आप इसको रीस्टोर करें, हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे फिर हुकूमत भेजेंगे। तो यानी एक बेतुकी बात है जिसके ऊपर ये सारी अपोजिशन इस वक्त फंसी हुई है। मैं अपोजिशन से भी कहना चाहूँगा मुल्क का भी ख्याल करें। मुझे पता है कि आपका अपने पाँव तक की सिर्फ ध्यान है, उससे आगे आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने मुल्क को स्टेबिलिटी जल्द अज जल्द इस्तेहकाम की तरफ, सियासी इस्तेहकाम की तरफ अगर हम नहीं लेके आए तो मुल्क की मईशत जो है उसको शदीद नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि हमें जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम की तरफ वापस आना चाहिए। जी मैडम सर, ये फराह खान के हवाले से सवाल करूंगी। उनके हवाले से कहा गया है कि वो मुल्क से बाहर चली गई हैं और जबकि पीटीआई के अपने लोग। फराह खान कौन है? उनसे पूछ कर नहीं कह रही, खातून अव्वल की दोस्त थी जो के साथ जो होगा और पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के साथ जो होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब यहाँ आपके सामने तकरीर करने आए तो इनसे पूछिएगा कि बैरूने मुल्क साजिश तो आपकी हुकूमत गिराने के लिए हो रही थी, जिसका आपके मुताबिक ऑपोजिशन हिस्सा बनी थी। तो बैरूने मुल्क साजिश अगर हुई तो अदम एतमाद की वोटिंग की तहरीक को मुस्तरद करके आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? आपने असेंबली क्यों तोड़ी? क्योंकि ये तो बैरूने मुल्क साजिश चाहती थी। आपको चाहिए था, आप वज़ीर आज़म हैं, जिन ने बैरूने मुल्क साजिश की थी उनके खिलाफ तहकीकात करते, उनको सज़ा देते। आपने वज़ीर आज़म की कुर्सी भी छोड़ दी, आपने असेंबली भी डिसॉल्व कर दी और आपने इलेक्शन की कॉल भी दे दी। क्या पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ समझ रखा है? अगर आपके पास शवाहिद मौजूद थे, अगर आपके पास वो तमाम सबूत मौजूद थे कि बैरूने मुल्क साजिश हो रही है आपके हुकूमत के ख़िलाफ़, तो फिर आपको तहकीकात करानी चाहिए थी।
آپ کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی. آج جو کمیشن بنانے کی بھیک مانگ رہے ہو, اس وقت کمیشن بنانا چاہیے تھا. اسمبلی کیوں ڈیزالو کی؟ اس لیے یہ ڈرامے, یہ ڈھونگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو. اور میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. میں پاکستان کی عوام کو خوشخبری جو 3 دن پہلے ان کو آئی تھی کہ عمران خان صاحب, یہ کارٹلز, یہ مافیا, یہ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چور اب آپ کا وزیر اعظم نہیں رہا. یہ اپوزیشن کی جیت ہے, یہ پاکستان کے عوام کی جیت ہے کہ آج وہ لوگ جو 3.5 سال لوٹ مار کر کے بنی گالا میں جو لوٹ مار ہوتی رہی, پنجاب میں جو لوٹ مار ہوتی رہی, آج ایک شخص نے پہلے 3.5 سال ایک شخص نے اپنی نالائکی, نااہلی, چوری, کرپشن پہ 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنائی رکھا. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی تھی. ناظرین, خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پی ٹی وی کراچی مرکز سے جاری رمضان پاکستان نشریات کے تیسرے روزے کی ٹرانسمیشن میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے فضائل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ دیکھیے. رمضان پاکستان کی نشریات کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا, جبکہ نعت خواں سبی رحمانی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. خرد سے کام لیا ہے ان کا دامن تھام لیا ہے. نشریات میں معروف مذہبی اسکالر جمیل راٹھور اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے خاص محبت اور لگاؤ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس محبت کا عملی مظاہرہ بھی کیا. امت محمد مصطفیٰ میں جو انتہائی افصح و ابلغ کردار نظر آتا ہے, ایک مقفع مسجع جو کردار ہمیں نظر آتا ہے, جو زہد بھی ہے, جہاں تقوی بھی ہے, عبادت بھی ہے, ریاضت بھی ہے. اگر آقا کریم اگر باغ نبوت ہیں تو اس باغ کی کلی کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بچوں کے درمیان تاریخ اسلام سے متعلق کوئز کا مقابلہ بھی ٹرانسمیشن کا حصہ رہا. لوگوں کے سماجی مسائل کے حل کے لیے مولانا عمران کلیانوی نے قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بیان کیے. بچوں کے سیگمنٹ میں خالد انم نے بچوں کو انبیاء کرام کے قصے نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیے. ٹرانسمیشن میں معروف اداکارہ نے شرکت کی اور اپنے کریئر کے بارے میں بتایا. ہربل اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلقیس نے مفید مشورے دیے اور روزے کے دوران چست رہنے کا ٹوٹکا بھی بتایا, جبکہ شیف عائشہ ابرار نے ماش کی دال کے دہی بڑے بنانے کی ترکیب بتائی. حسن ناصر صدیقی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک, جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. گزشتہ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد, شہید بنظیر آباد, لسبیلا, سبی 44, دادو مٹھی, موہنجودڑو, پن ایدن, سکھر, رحیم یار خان, خانپور اور خیرپور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال. آسٹریلیا نے پاکستان کو T20 میچ میں 3 وکٹوں سے ہرا کر تاریخی دورے کا اختتام خوشگوار یادوں کے ساتھ کر لیا. مہمان ٹیم نے 163 رنز کا ہدف آخری اوور میں 7 وکٹوں پر حاصل کیا. کپتان ایرن فنچ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. تفصیل محمد یونس سے جانیے. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 162 رنز بنائے. اوپنرز بابر اعظم اور محمد رضوان نے ٹیم کو 67 رنز کا آغاز دیا. محمد رضوان نے 23 اور بابر اعظم نے 66 رنز کی اننگز کھیلی.
Oh, they've bowled wide of the off stump. No. Oh, it's straight. He plays nice and aggressively. That's 4 runs. That's a little bit of a gift. Can't afford to give that present away to Babar Azam. ओपनिंग शराकत टूटने के बाद दीगर बल्लेबाज नुमाया स्कोर ना कर सके और विकेटें गिरती गईं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन एलिस ने 4 और कैमरून ग्रीन ने 2 विकेटें हासिल की। Oh, he's chopped it on. Oh, it's a very good delivery, and he's got underneath that. He's underneath that. This is Afridi this time, and that might be out as well. आखिरी ओवर में उस्मान कादिर ने शानदार बैटिंग करते हुए 18 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 163 रन का हदफ 19.1 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने इब्तिदा से ही तेज खेल पेश किया और दीगर बल्लेबाजों के लिए हदफ का ताक़ुब आसान बनाया। ट्रेविस हीड ने 26, जोश इंग्लिस ने 24 और मार्कस स्टोइनिस ने 23 रन जोड़े। This is the one, there we go. He's bowled him. There it is. कप्तान अरुण फिंच ने निफ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 6 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। Comfortable single. When it mattered most, the Australian captain has turned it on. Brings up a well-deserved half century. पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बरह रास्त दिखाई गई। What an amazing game this was. They are the winners. Congratulations to Australia. Just the one T20 international. और इसी रिपोर्ट के साथ खेल से फिल्म वक्त इतना ही। लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। रमज़ान पाकिस्तान।